آج میری سہاگرات تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھا اس بات سے بھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی صرف تصویر دیکھی تھی کیونکہ میری ماں کا کہنا تھا کہ تم لوگوں نے ساری رسم و روایات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور تصویر دکھانے کے حق میں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات مان کر مجھے تصویر دکھا دی۔ تصویر بھی ایسی تھی کہ شاید میری بیوی کی بہت پرانی تصویر تھی، لیکن دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی حسین ہے۔ میں بہت خوش تھا، اپنے کمرے میں خوشی خوشی جا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی کمرے میں تھی ہی نہیں۔ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ شاید کمرے میں نہیں تو باتھ روم میں ہوگی یا پھر بالکنی میں کھڑی ہوگی۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، لیکن سامنے صرف اتنا منظر نہیں نظر آ رہا تھا کہ میری بیوی غائب تھی، بلکہ میری بیوی کے کپڑے پڑے تھے، اس کا عروسی جوڑا، اور ان کپڑوں پر مجھے ایک خط پڑا ہوا ملا کہ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ آج کل ویسے بھی ایسی باتیں سننے میں بہت آ رہی تھی۔ 2 ہفتے پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ لڑکی والوں نے شادی سے پہلے ان سے بہت زیادہ سامان بھی لیا، سونا بھی لے لیا، اور بعد میں لڑکی اس کو 2 دن بعد چھوڑ کر چلی گئی۔ خیر، اس کی بیوی 2 دن بعد گئی تھی، میری بیوی تو ابھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے خط اٹھائے تو اس میں صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم طلاق نامہ میرے گھر بھجوا دینا۔ جب بات طلاق نامہ بھیجنے تک آ گئی تھی، میں تو فوراً اسی کے گھر چلا گیا اور وہاں جا کے واویلا مچانے کی خاطر دروازے پر زور سے دستک دی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب دیکھا کہ دروازے پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا، ابھی بھی باہر دیگیں پڑی تھی، کیونکہ اسی گھر سے میں ابھی لڑکی لے کر گیا تھا۔ یہاں پر شادی کا ماحول تھا، لیکن گھر والے گھر پر نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی سب کچھ سمیٹ کے کوئی نکل جائے؟ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آج ان کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے یہ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، بھلا محلے والوں کو کوئی کیا بتاتا ہے؟ میرے ساتھ تو بہت بڑا کھیل کھیلا گیا تھا، میری بیوی بھی چلی گئی اور میرے سسرال والے بھی۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میری ماں کو تو میں نے خود بھیجا تھا کہ مجھے بیوی کے ساتھ کچھ دن کے لیے اکیلا چھوڑ دے، مجھے پرائیویسی کی ضرورت ہے، لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کو رکھ لیا ہوتا تو میری بیوی پر نظر تو رکھ لیتی۔ میری ماں میری اصل ماں نہیں تھی، اسی لیے میں ان سے اس طرح سے پیش آتا تھا کیونکہ وہ میری سوتیلی ماں تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے میری سگی ماں بن کر پالا تھا، کبھی کوئی ظلم نہیں کیا مجھ پر، اور اب تو سارا کاروبار بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے لیے تو میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا دن سب سے منحوس دن بن گیا تھا۔ پہلے اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا، یہ بات سوچتا رہا کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کم سے کم مجھے بتا دیتی کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس کے خاندان کی سمت گیا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ چکے تھے، اور ماں کو بھی بتاتا تو کیا بتاتا، سر پکڑ کر بیٹا اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، صبح ہو گئی کہ میری نوکرانی میرے لیے کافی لے کر آئی، کیونکہ میرا یہ حکم تھا کہ مجھے صبح کافی پینے کی عادت تھی۔ میری نوکرانی نے لا کر میرے سامنے کافی رکھی۔ میری نوکرانی دراصل ہمارے خاندانی نوکر کی بیٹی تھی، بچپن میں ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ نوکرانی کبھی کبھی وہ مجھ سے کھل کر بات بھی کر لیتی تھی، لیکن ہمارے بھی بیچ ایک لکیر ضرور تھی جو مالک اور نوکر کے حوالے سے تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، آج آپ کا
वलीमा भी है। मैं तो अचानक हैरान रह गया कि शादी मैंने सादगी के साथ की थी, लेकिन वैसे मैंने अपने सारे रिश्तेदार और सब दोस्तों को भी बुलाया था, जो कि मेरी बीवी देखने के लिए बेकरार बैठे थे। और यहाँ पर मेरी बीवी मोहतरमा ही भाग चुकी थी। मैं बहुत परेशान था, फिर सोचने लगा कि क्या करूं। वो मुझे देखकर बोली, क्या बात है छोटे साहब, आपकी बीवी जी कहाँ है? वो तो यही समझी कि शायद मेरी बीवी बाथरूम में होगी। मैंने कहा कि चली जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है। वो भी डर सी गई क्योंकि मैंने गुस्से से कहा था, लेकिन जब वो जाने लगी तो मेरे दिमाग में जाने क्या ख्याल आया और मैंने बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। फिर उसको सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरा पर्दा रखना होगा, सबके सामने मेरी बीवी बनकर बैठना होगा। उसने कहा कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं तो नौकरानी हूँ। तो मैंने कहा कि तुम नकाब कर लेना, मैं कह दूंगा कि मेरी बीवी नकाब करती है और हर किसी के सामने नहीं उतारती। नौकरानी इस बात से थोड़ी डर गई। अगर ये कोई और नौकरानी जो सिर्फ हमारे घर में काम करती, जिसका हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ ना होता, तो कभी ये काम करने पर राज़ी ना होती, लेकिन फिर भी वो मेरी बात सुन रही थी। इसका कहना था कि अगर किसी को पता चल गया तो हम क्या जवाब देंगे? अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो तो जीते जी मुझे मार डालेगा। इसने ये भी बताया कि मेरी मंगनी बचपन में हो चुकी है और 3-4 महीने बाद तो मेरी अपनी शादी है। मैंने उसे कहा कि उसे ये खेल सिर्फ 1 महीने तक खेलना है, इसके बाद मैं मशहूर कर दूंगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है और वो मुझे छोड़कर चली गई है। लेकिन अगर ये बात अभी सबके सामने इस तरह आ गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मैं इसके सामने हाथ जोड़ने लगा कि मेहरबानी करो, मेरी मदद करो। इसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अपनी बीवी के कपड़े और सब सामान उसके हवाले करके कहा कि शाम तक तैयार हो जाना। उसे तैयार होने का हुक्म देकर खुद बाकी के काम निपटाने चला गया। सारी मेरी शादी के लिए बहुत खुश थे, मुझे भी मुबारकबाद दे रहे थे। मेरे दोस्त, शाम को तुम्हारा वलीमा है, खूब मज़ा आएगा। जबकि मैंने सोचा कि मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर चली गई है, पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया था जिसकी मुझे सज़ा मिली है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब मैं सारी दुनिया को, मुआशरे को धोखा दे दूंगा, लेकिन अपने आप को कैसे समझाऊंगा? मैंने तो उसे गौर से भी देखा नहीं था। मेरी नौकरानी बहुत अच्छी थी, जिसने मेरा साथ दिया और तैयार होकर स्टेज पर बैठ गई। इसने नकाब भी कर रखा था और मैंने घूंघट भी करवा दिया था। सब लोग ये देखकर हैरान हुए, मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारी बीवी शरई पर्दा करती है, हमें तो ये बात नहीं बताई थी। तो मैंने कहा कि इसमें बुरा क्या है? अगर पर्दा करती है तो सब लोग इस बात पर क्या कह सकते थे? इस बात पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, आजकल तो इस तरह की लड़कियां मिलती ही नहीं है। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। लोगों को क्या पता था कि मेरी जोड़ी तो कब की मिट चुकी थी। मेरी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के, और तलाक बेचता तो किसके घर बेचता? इसके घर वाले भी घर पर नहीं थे और मेरे पास मेरी बीवी से रब्ता करने का भी कोई जरिया नहीं था। अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, इतनी जल्दी में क्यों थी? कम से कम मुझसे तलाक लेकर जाती। जब भी मेरे घर कोई रिश्तेदार या दोस्त ने आना होता, या मैंने किसी पार्टी में जाना होता, या इस तरह का कोई भी मौका होता, तो मैं अपनी नौकरानी को कहता था कि वो तैयार होकर मेरे साथ चले या घर में ही तैयार होकर बैठ जाए। वो ऐसा ही करती थी, पर बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो भी किसी और के नाम से मंसूब हो चुकी थी और इसके लिए भी ये सब आसान नहीं था। 1 महीना जैसे तैसे गुजर गया और फिर एक दिन मैंने ये बात मशहूर कर दी कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई ऐसी बात पता चली थी जो एक मर्द कभी बर्दाश्त
नहीं कर सकता। मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा कि बेचारी अच्छी भली लड़की थी, शरई पर्दा करती थी। बस फिर मैं सबसे बदतमीजी पर उतर आया। मुझसे कोई सवाल करता तो मैं कहता कि मेरी ज़िंदगी है, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। और इस तरह मेरे दोस्त भी मुझसे नाराज़ हो गए और रिश्तेदारों ने भी मेरे घर आना छोड़ दिया। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। मेरी शादी इस तमाशे को 3 महीने गुजर चुके थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बार बार दस्तक हो रही थी। पहले तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर याद आया कि आज सारे नौकर छुट्टी पर चले गए थे, इसलिए मुझे ही जाकर दरवाज़ा खोलना था। मैंने जब जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर अंधेरे में मुझे किसी लड़की का अक्स नज़र आया। वो बारिश में बुरी तरह भीग रही थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। पीछे बार बार देखती। इसने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा, ये कौन सी हरकत है बीबी, क्यों मेरे घर में घुस आई हो? तो उसने कहा, मेरी मदद करें। मैंने कहा, मैं किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हर किसी के साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन सब धोखा देते हैं। मैं उसे अपने दुख सुनाने लगा। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। इसने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने इसको देखा तो मुझे वो जानी पहचानी नहीं लग रही थी कि मैंने अपनी बीवी की सिर्फ तस्वीर देखी थी, वो भी इसकी बहुत पुरानी तस्वीर थी जिसमें शायद सही 17 साल की थी। लेकिन फिर थोड़ा वक्त बहुत अंदाज़ा हो रहा था कि वो मेरी बीवी थी। तो उसे देखते ही मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि क्यों वापस आई हो, क्या लेने के लिए आई हो? यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तुमने सारे ज़माने के सामने रुस्वा कर दिया और ज़लील करवाया। मुझे अपने रिश्तेदारों से दूर करवा दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे छोटे छोटे ख्वाबों को आग लगा दी। और अब मेरे पास वापस क्या करने आई हो? वो बुरी तरह रोने लगी, लेकिन मुझे इसके रोने पर कोई रहम नहीं था। लेकिन फिर इसने मुझे एक बात बताई कि मैं वाकई हैरान रह गया। इसने कहा कि मैं तो अपने कमरे में बैठी आपका इंतज़ार कर रही थी। आपकी अम्मी कमरे में आई और मुझे एक एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। इन्होंने कहा था कि आप पहले से शादीशुदा है और आपका बहुत सी लड़कियों से चक्कर है, और आपने मुझसे शादी भी सिर्फ इसी वजह से की है, इसलिए वो मेरी मदद कर रही है, क्योंकि आप एक बहुत जालिम इंसान हैं। और मुझे वहाँ से ले गई, लेकिन फिर इन्होंने मुझे एक घर में कैद कर दिया और मुझे कुछ दिन बाद ही पता चला कि वो मुझे कहीं जाने नहीं दे रही। इनका कहना था कि कुछ दिन यहाँ रहो, मैं मामला हल कराऊंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं वहीं पर उसी घर में रह रही थी। वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देती थी और मेरे घर वालों को डरा धमका कर भगा दिया था। मुझे पता चल गया कि आपकी अम्मी मेरे साथ धोखा कर रही है। इन्होंने कहा कि वो आपकी सौतेली माँ है, वो नहीं चाहती कि आपकी शादी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आए। वो चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में उनकी मर्ज़ी की लड़की आए, ताकि वो इसे भी कंट्रोल कर सके और आप भी इनके हाथों से ना निकले जाए, वरना नहीं तो सारी जायदाद उस लड़की की हो जाएगी और आपकी अम्मी को कुछ भी ना मिलेगा। मैं वहीं पर कैद थी। मैं आपके पास आना चाहती थी। मेरे पास आपसे राब्ता करने का कोई तरीका नहीं था। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी आसानी से पागल बना लिया और मैं यहाँ से निकल गई। मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, अभी तक आपके निकाह में हूँ। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। तभी मैं सोचता था कि भला किसी वजह के कोई लड़की कैसे जा सकती है, और अगर इतना ही उसे जाने का शौक था तो तलाक लेकर क्यों नहीं गई? ये क्यों कहा कि तलाक भिजवा देना? ये बात तो कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता है। मैंने उसे कहा कि परेशान ना हो, मैं सारा कुछ देख लूँगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, तलाक नहीं दी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और बुला लिया। मैंने उनको सारी बातें बता दी। मेरी माँ पहले तो सीना तान कर खड़ी रही, लेकिन फिर मान गई कि ये सब उसी ने किया है। मैंने कहा कि आज से मैं आपको अपनी ज़िंदगी अपने घर से निकालता हूँ। आप जहाँ मर्ज़ी जाए, मुझे आपकी कोई
परवाह नहीं है। आपने साबित कर दिया कि आप मेरी सौतेली माँ हैं और कभी भी औलाद का अच्छा नहीं सोच सकती। लेकिन हमारे सामने एक और बहुत बड़ा मसला था, वो ये कि मैंने सबके सामने ये मशहूर कर दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। अब दोबारा से वो बीवी अपनी ज़िंदगी में मैं कैसे ला सकता था? लोगों ने तो मुझे कहना था कि तलाक तो दे दी, फिर इसके साथ हराम रिश्ते में कैसे रह रहे हो? लोगों को कैसे समझाता? लेकिन फिर भी ये मेरी बीवी थी, अभी तक मेरे निकाह में थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, वो ये कि मेरी बीवी की शक्ल तो किसी ने भी नहीं देखी थी और मैं लोगों को ये कह सकता था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरी ज़िंदगी का तमाशा बन गया था जो मेरी माँ ने बनाया था। लेकिन अब जो हो गया था उसको लेकर चलना ही था। मैंने फिर से मशवरा किया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। लोगों ने मेरा साथ दिया कि अच्छी बात है, बेवफा औरत के लिए हर औरत को बुरा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपनी बीवी को सबसे ये कहकर मिलवाया कि ये मेरी दूसरी बीवी है, जबकि ये मेरी पहली और आखिरी बीवी थी और ये बहुत अच्छी इंसान है। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हम अभी एक साथ रहते हैं।